Yes. So, very good evening, everybody. On behalf of HR College of Commerce and Economics, HSNC University, I extend a very, very warm welcome to all our first year students, faculty members, coordinators who are here, and even our guest for the session two of our FY induction series. The theme of today's session, which we have, is Pause, Breathe, and Thrive, and is especially relevant in today's fast paced and highly connected world. As students begin a new chapter in their lives, understanding the importance of balance, mindfulness, and stress management with overall holistic wellness can make a lot of difference in their personal as well as their academic growth. With this, I take a privilege to introduce our extreme esteemed speaker for today, which is Dr. Sharvari. Dr. Sharvari is a renowned Ayurveda practitioner, diabetes reversal expert, and wellness educator. She holds a BAMS and a master's degree in Yoga Shastra, in which she has secured a gold medal by standing first in university and a certificate in gynecology. And she's the founder of 121 Wellness, a dedicated Ayurvedic dispensary and Panchakarma clinic, and has been practicing authentic Ayurveda since 2009. Over the years, ma'am has conducted numerous wellness sessions, yoga workshops, and health awareness programs for leading organizations including ZTV, Aditya Birla Group, Kotak, Standard Chartered Bank, to name a few. Now, her expertise extends not only to women's health, stress management, etc. She has a lot trained more than 500 yoga teachers through specialized teacher training programs, and has also shared her knowledge internationally. I can tell about ma'am that just a few days ago, she had also taken a session with us on International Yoga Day. I remember seeing her as well, and the session was well appreciated by all faculty members. So we thought we should also extend the same to our students who have just joined us in the first years. So everyone, please join me in extending a warm virtual welcome to Dr. Sharvari as she guides us through this insightful and enriching session. So thank you so much, ma'am, for being here. Yes, over to you. Thank you, Dharti. Thanks for this inviting so that I can interact with all these young minds. Thank you very much. Shall I start my session? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So, is everybody, will these videos will be shut forever? Students, please switch on your videos. Ma'am, we can Yeah, try if they I Yes, understand. students, please switch on your video, please. It's a humble If request to please. possible, please switch on your video so that I can see you. We are going to do some activities. If you are doing it properly, it will be really very great fun for you also. Yes, if possible, please switch on your videos. Everyone, please switch on your cameras. Right. So I'm taking this session from my clinic. I have already arranged the patients so that nobody will disturb us. But please, in case if anybody comes, we will have to pause for some time. Okay, so shall we start, everyone? Okay. Yes, So ma'am. thank you so much. So are you spotlighting me or how they can see me? Yes, thank you. Right. So basically, this is my clinic, and the statue you can see, that is Bhagwan Dhanvantari, who was the one who has taken this Ayurveda on this earth. During the churning of ocean, समुद्र मंथन में जो अमृत लेकर आए वो ये भगवान धन्वंतरी होते. And अमृत is nothing but the Ayurveda, so that we can actually be like disease free forever. That is what this is Ayurveda. Ayu is the your life. Ved is means to know how to live the your life. That is actually said or written in Ayurveda. Okay, so that was like little bit introduction of our Ayurveda. That is the khal we generally use. This is the khal we generally use to make our preparations and everything. And this is my clinic. Okay, so as Dhwani introduced me that I am a Ayurvedic practitioner, this is my pure Ayurvedic practice in this Charni Road, Girgaon, South Mumbai. It's very close to Charni Road station. So let us start our session with this small
humming. Okay, basically we start our session with Omkar, three Omkars. But if you are not comfortable with Omkar, I'm completely fine. You just can hum with me. Okay, everyone. So if it is possible, please keep your eyes closed and take your back completely straight. Okay. राइट आई नो दैट यू आर इन द हसल ऑफ एवरीथिंग. आपको कहीं जाना होगा, कहीं से आप आए होंगे, देर आर मेनी पीपल अराउंड यू. सो इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस. टूडेज अवर सेशन इज ऑन द पॉज ब्रीथ. Okay, so focusing is really very important. So let us start with our session with this simple humming of Omkar. If you are comfortable with Omkar, you can chant this Omkar. If you are not comfortable with Omkar, you just hum with me. Okay, everyone. So please close your eyes and take your back completely straight. Right? If you are sitting on your chair, then please touch your soles completely. Keep your soles completely on ground and take your back straight, making 90-degree angle to the floor. Close your eyes. Keep your chin parallel to floor. You can keep your palms relaxed on your thighs. We are going to chant three Omkars. Everybody, please take a deep breath. Oh. One more time, take a deep breath. Oh. One more time, deep breath. Oh. Keep your eyes closed for a few seconds. Just try to observe your own breathing. Try to observe the vibrations which are created by this Omkar chanting or humming. Try to understand the little changes in your heart rate, your breathing rate. Slowly and very gently open your eyes. Thank you so much. जिन्होंने वीडियोस नहीं ऑन किए थे, आई होप कि उन्होंने भी ये हमिंग किया है हमारे साथ. 2-3 वीडियोस ऑन है, उन्होंने तो पक्का किया. आई कैन सी दैट. राइट. ओके. सो आई नो दैट टुडेज लाइफ इज रियली वेरी बिजी. हम कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं. देयर इज नथिंग लाइक टू स्टॉप और टू रिलैक्स. राइट. एंड एवरीबडी इज एक्चुअली आफ्टर दिस रिलैक्सेशन ओनली. हर एक को एक रिलैक्सेशन चाहिए होता है. कहीं ना कहीं हर एक को रुकना होता है, लेकिन आजकल के लाइफ की डिमांड ही ऐसी होती है कि हमें भागना पड़ता है. ऊपर से जो हमारी मुंबई की लाइफ स्टाइल है वो तो और भी ज्यादा फास्ट है. वी जनरली डोंट स्टॉप. मुंबई के लिए घड़ी भी बहुत फास्ट चलती है, ऐसे कहा जाता है. बराबर. हमारा पूरा लाइफ ये घड़ी के पीछे ही चलता है. ओके. बट स्टिल वी फील कि कहीं ना कहीं पे ये पॉज लेना बहुत जरूरी है. Right? So pause is not actually a weakness, basically, or nothing is kind of a delay in this having this pause. It is a moment of power, right? कि जब हम pause करते हैं तब हम आगे के लिए कुछ ना कुछ सोचते हैं और उसके अनुसार हमारी कुछ ना कुछ एक्शन हो जाती है. So pause is actually the ability जो हम आगे के सोचने के लिए हमें देती है. Right? So pause is really very important in a world that constantly pushes us to react. बराबर है ना. अगर हमने रिएक्ट नहीं किया तो हम पीछे पड़ जाएंगे, ऐसे हमें बार बार डर लगता है. आप कोई भी व्हाट्सएप फॉरवर्ड देख लीजिए, कोई भी इंस्टाग्राम में आई हुई रील देख लीजिए. बराबर. जैसे ही व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आता है, देयर इज काइंड ऑफ एन अर्ज इनसाइड अस कि इसको मैं एटलीस्ट लाइक करूं या तो उसे फॉरवर्ड करूं. दैट इज काइंड ऑफ अवर रिप्लाई. वी आर रियली वेरी इन अ हरी टू गिव समथिंग, सम रिप्लाई टू समवन. राइट. लेकिन अगर बहुत बार इसके वजह से क्या हो जाता है कि वो जो कोई रॉन्ग मैसेज है वो किसी और को चला जाता है, या तो रॉन्ग मैसेजेस ऐसे ही सर्कुलेट होते रहते हैं.
राइट, क्योंकि हम वहां पर रुकते नहीं है, वी आर नॉट टेकिंग एनी पॉज टू जस्ट टू कंटेम्पलेट ऑन दैट मैसेज, वेदर दिस मैसेज इज वर्थ ऑफ फॉरवर्डिंग और वेदर दिस रील इज वर्थ ऑफ वॉचिंग कंप्लीटली। डू यू एग्री विथ मी? कोई भी जो रील आता है इंस्टाग्राम के फीड में, हम जनरली बिना सोचे वो एटलीस्ट देखते हैं, या तो वो किसी को फॉरवर्ड कर देते हैं। सो दिस इज काइंड ऑफ अ रश कि हमें रिस्पॉन्ड करना है, हमेशा हमें कुछ ना कुछ रिएक्टिवनेस दिखाना चाहिए, नहीं तो हमें लगता है कि अरे हम पीछे पड़ जाएंगे। बराबर। सो बेसिकली द पॉज इज द एबिलिटी विच हेल्प अस टू रिस्पॉन्ड वाइजली देन इम्पल्सिवली। Nowadays everybody is so impulsive कि कुछ भी होता है तो बहुत पहले रिएक्शन ही आ जाती है। एक्शन को रिएक्शन होता है ये हमें पता है, लेकिन अगर हम वहां पर कहीं ना कहीं पे पॉज लेते हैं तो ये जो हमारी एक्शन रहती है वो काफी वाइज कही जाएगी, और हम वी आर नॉट गोइंग टू रिग्रेट फॉर अवर एक्शन। बहुत बार होता है ना आपके साथ भी कि किसी चीज को हम ऐसे इम्पल्सिवली रिएक्ट करते हैं और बाद में रिग्रेट करते रहते हैं कि अरे भाई मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, या तो मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, बट स्टिल वी रिएक्टेड इन दैट वे। एम आई राइट? तो उसके लिए पॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पॉज लेना ये कौन सिखाता है? तो ये योग सिखाता है, बिकॉज योग टीचेस अस टू लिव इन अ मोमेंट, इन अ प्रेजेंट मोमेंट। बराबर। हमारे पास पास्ट जो मोमेंट है जो चला गया है, वी हैव नो कंट्रोल ओवर दैट, and whatever is coming in future we have absolutely no, we don't have control on that also, right? हमारे पास ये आज का मोमेंट है और वो भी अभी का मोमेंट है। इफ यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर मोमेंट देन यू आर नॉट गोइंग टू थ्राइव। सो पॉज इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट नेक्स्ट थ्राइव, जो हमें आगे जाके प्रोग्रेस करनी है वो बहुत जरूरी रहती है। बराबर। आपने काफी ओलंपिक या ऐसे स्पोर्ट्स में स्प्रिंट जिसमें 100 मीटर से 500 मीटर्स आपको दौड़ना पड़ता है, उसेन बोल्ट इज द फास्टेस्ट रनर, जो बहुत अच्छे से भागता है, उसके नाम पर काफी वर्ल्ड रिकॉर्ड है हमें पता है। बराबर। बट बिफोर दैट रन स्टार्ट्स ऑब्वियसली देयर इज अ पॉज। Without that pause, all these runners or these sprinters, they cannot run. राइट। सो पॉज इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने स्विमिंग के भी कॉम्पिटिशन्स देखे होंगे तो वहां पर जब भी वो कॉम्पिटिशन, वो जो विसल बजती है या तो गन शॉट होता है, उसके पहले एक पॉज होता है। इन दैट पर्टिकुलर पॉज ऑल दिस एथलीट्स दे प्रिपेयर देमसेल्व्स, they prepare themselves physically, and more than physically they prepare themselves mentally, राइट। पहले ही मतलब जंप करने से पहले उनके दिमाग में ये सारी रेस ऑलरेडी वो जी चुके होते हैं, एंड दैट इज एक्चुअली पॉसिबल बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉज। So that is why pausing or stopping somewhere for few moments is very, very important. Then only we can enjoy the future life, right? So pause before you react. Pause before you make any decision. Pause to notice your thoughts and your emotions, and pause to breathe. That is really very important. Okay, so let us do one simple activity. आप I hope कि आप सब लोग मुझे सुन रहे हो, आप सब लोग मुझे देख रहे हो। एक for just for next few minutes, just for 2 or 3 minutes, can you all please switch on your cameras? Please, please, please. Okay, just for few minutes. Okay, right, please. Thank you Yes, so much. students, please immediately switch प्लीज on your जस्ट फॉर camera, टू please. टू थ्री मिनट्स आफ्टर दैट थोड़ी बार देर के बाद आप बंद कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, राइट एवरीवन? ओके, तो वी आर गोइंग टू क्लैप, वी आर जस्ट गोइंग टू क्लैप। ओके, क्लियर? फास्ट क्लैप करेंगे, एक रिदम के साथ क्लैप करेंगे। अगर हो सके तो ऑडियो भी आप चालू कर दीजिए, सो दैट आई कैन हियर एंड एवरीबडी कैन हियर, सो दैट दैट क्लैपिंग साउंड विल बी रिदमिक। ओके, प्लीज स्विच ऑन योर ऑडियो ऑल्सो। म्यूट मोड से निकल आइए। यस, प्लीज म्यूट मोड निकाल दीजिए, वीडियो ऑन कीजिए, निकालिए, थोड़े आवाज आने दीजिए एक दूसरे की। यस, ओके, सो वी आर जस्ट गोइंग टू क्लैप। ओके एवरीवन, गुड, फास्ट, क्लैप, क्लैप, क्लैप,
clap, 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 pause. One more time, clap, 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 clap. Please clap, 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 pause. Clap. Again, stop clapping. Please do it. Clap, clap, clap. One more time, clap. Come on, first, everyone. Clap, 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 clap. Pause. Close your eyes. So when you pause, was there any difference in this sound or understanding this sound? जब आप क्लैप कर रहे थे तब आपका साउंड का अंडरस्टैंडिंग एंड व्हेन यू पॉज एट दैट टाइम द अंडरस्टैंडिंग ऑफ साउंड वाज देयर एनी डिफरेंस? कुछ तो अलग फील हुआ या कुछ नहीं हुआ? क्लैप करते समय मैम एनर्जी फील हुई कि एक एनर्जी थी, और जब पॉज किया तो एक रिलैक्सेशन, एक शांति फील हुई। मतलब आपको वो जो साउंड था वो उसमें थोड़ा सा तो फील हुआ कि यार ये अलग साउंड था, या जो साउंड का जो अंडरस्टैंडिंग था वो बेहतरीन हुआ बिकॉज ऑफ दिस पॉज, यस राइट? whenever you are listening any music, अगर आप वो भागते भागते सुन रहे हो या तो एक साथ शांत बैठ के सुन रहे हो, there is always a difference, am I right? अरिजीत सिंह के गाने अगर आप एक्सरसाइज करते वक्त सुनते हो और शांत बैठे सुनते हो तो उसमें वो अलग ही उसका लिरिक्स और उसका जो मीनिंग रहता है वो अलग तरीके से हमें समझ में आता है. सो पॉज इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो दैट इज वाई पॉज इज नॉट द लाइक वीकनेस, कि आपको अगर कहीं पे आप रुक रहे हो तो ये कहीं पे भी आपका वीकनेस नहीं है. इट इज एक्चुअली यू आर प्रिपेयरिंग यूर सेल्फ फॉर द बेटर फ्यूचर. और जो आपको वापस बाद में प्रोग्रेस करनी है उसके लिए ये जो पॉज है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, सो दैट इज वाई स्लोइंग डाउन योर सेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि हमें हमें सब कुछ सब जगह पर भागना ही होता है. वी हैव टू कैच अ ट्रेन, वी हैव टू गेट रेडी फॉर अवर क्लासेस, कॉलेजेस, दिस सबमिशन, दैट फेस्टिवल, one project is there, or again that means we are actually completely busy. I know, I understand the assets of this student life and you are going to be really very busy. लेकिन उसमें भी अगर आप रोज का अगर आधा घंटा निकाल रहे हो just to contemplate on your thoughts, on your emotions and your breathing, that is actually very important for your further life. Right? Yesterday only we actually celebrated this International Yoga Day. Everybody must be knowing, right? 21st June is International Yoga Day. You must have participated in yoga sessions also, right? So the theme of this today's or the yesterday's International Yoga Day is yoga for healthy aging. ओके, राइट. सो वट एवर द एजिंग वर्ड इज एक्चुअली क्या मीनिंग है? हमें लगता है एजिंग मतलब योगा फॉर एजिंग मतलब योगा बुढ़ापे के लिए है, ऐसे ही तुरंत हमारे दिमाग में आ सकता है. बट एजिंग इज नॉट द वर्ड कि जो सिर्फ बुढ़ापे से या जो सिर्फ हम जो लोग देखते हैं 60-70 प्लस उनके लिए ये नहीं है. एजिंग इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस जो आज हमारे शरीर में भी चल रही है. जैसे ही हम जन्म लेते हैं वहां पर एजिंग शुरू हो जाता है. So whenever you are doing yoga, whenever you are healthy, and that is actually will be counted whenever you are in 60s. So yesterday in that session also I explained this, that your health in 60s will be decided by the exercise and diet you are following today in your 20s and 30s. सो योगा फॉर हेल्दी एजिंग का मीनिंग है कि अगर आज से आप अगर योगा प्रैक्टिस शुरू करते हो तो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर 60s, in your 70s and in your 80s. This yoga practice that you are doing today, it will help you to keep fit in those days. So that is why this is the meaning of yoga for healthy aging. It is not the yoga for aged people, right? So yoga is kind of a pause, क्योंकि हम योगा के लिए एक जगह पर बैठते हैं
योगा हमें एक जगह पर बैठने की शक्ति देता है। आजकल के ये हाइपर एक्टिव जमाने में जहां पर काफी लोगों को अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर्स होते हैं, काफी बच्चे हाइपर एक्टिविटी के लिए हमारे पास लेकर आते हैं उनके पेरेंट्स, और उनकी एक ही कंप्लेंट रहती है कि ये बच्चा एक जगह पर बैठता नहीं है। सिंस इट इज नॉट सिटिंग एट वन प्लेस, ऑब्वियसली उसका कॉन्सेंट्रेशन जो स्पैन रहता है वो बहुत कम रहता है। आपके लिए भी ऐसे कभी होता होगा कि कॉन्सेंट्रेट आप नहीं कर पा रहे हो, एंड विथ फॉर ऑल दीज प्रॉब्लम्स द योगा इज द नाइस थेरेपी, और आई कैन से द परफेक्ट थेरेपी, क्योंकि योगा आपको एक जगह पर बिठाना सिखाता है, आपके ब्रीदिंग पर कॉन्सेंट्रेट करना सिखाता है, एंड योगा इंक्रीजेस योर अवेयरनेस अबाउट योर ओन इमोशंस एंड थॉट्स. That is why pausing and doing yoga and pause is actually the synonym, you can say, because you are pausing somewhere. Asan practice is one thing, आजकल डायनामिक योगा वगैरह भी है, बट ऑलवेज रिमेंबर योगा करते वक्त जो भी बॉडी और माइंड का जो कनेक्शन होता है, दैट इज काइंड ऑफ अ पॉज ओनली. You are immediately getting detached from the outer world, and then you are seeing, or you are looking at your own body, you are looking at your own thoughts and emotions. That is actually the living the moment, living that particular present moment, and that is a pause. Okay, so that is why pause, breathe and thrive, that is really very very important for you in this age. Okay, so अभी हम थोड़ा सा ब्रीदिंग प्रैक्टिस के लिए जाते हैं, सिंपल ब्रीदिंग प्रैक्टिस जिसमें हम ब्रीदिंग में भी पॉज लेने वाले हैं. ओके, सो दैट यू विल बी मोर अवेयर अबाउट योर इनहलेशन एंड एक्सलेशन. ओके, राइट. सो आई होप दैट एवरीबडी यू आर सीइंग मी. आपके वीडियोस फिर भी अगर ऑफ है, बट स्टिल यू आर वॉचिंग मी एंड यू आर फॉलोइंग मी. ओके, राइट. सो लेट अस गो फॉर दिस सिंपल प्रैक्टिस, ओके, which is called as breathe pause, right? In yoga practice we generally call it as a square breathing, right? Okay, so for square we have four same length lines. We know what is square. Okay, तो वैसे ही हम करने वाले हैं. We will breathe in, or we will inhale for 4 counts. We will hold our breath for 4 counts. We will exhale for 4 counts, and again we will hold our breath outside for 4 counts. That means breathe in, pause, breathe out, pause. Everybody understood? Okay, right? I'm repeating again. We are breathing in, that means inhalation, pause, exhalation, pause. Inhalation for 4 counts, pause for 4 counts, exhalation for 4 counts, and pause for 4 counts. Clear, everyone? So we are going to perform this practice 5 rounds, total 5 rounds. Okay, everyone? Okay, so let us start with this. Again, take your back completely straight. If you are sitting on chair, please keep your soles on ground so that your soles can touch this ground comfortably. थोड़ा सा चेयर से आगे आ जाइए, सो दैट आपके सोल जो है, आपके पैरों के तलुए जो है वो जमीन पर आ जाएंगे कंप्लीटली. आपके थाइस को जमीन से पैरेलल कर दीजिए, और आपके बैकबोन को जमीन से 90 डिग्री एंगल पर लेकर आइए. कीप योर चिन पैरेलल टू फ्लोर, एंड देन जेंटली ड्रॉप योर आईलिड्स. यस, ड्रॉपिंग योर आईलिड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं कुछ भी अलग नहीं दिखा रही हूँ, मैं सिर्फ ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रही हूँ. ओके, सो let us start, everyone. वेळ लागेल 7 वाजता. Right. Okay, chalo. So we are going to breathe for 4 counts. Everybody keep your eyes closed. Inhale 1, 2, 3, 4. Pause 1, 2, 3, 4. Start exhaling 1, 2, 3, 4. Pause 1, 2, 3, 4. Inhale 1, 2, 3, 4. Pause 1, 2, 3, 4. Exhale 1, 2, 3, 4. Pause 1, 2, 3, 4. Inhale 1, 2,
3, 4. Pause. 1, 2, 3, 4. Exhale. 1, 2, 3, 4. Pause. 1, 2, 3, 4. Inhale. 1, 2, 3, 4. Pause. 1, 2, 3, 4. Exhale. 1, 2, 3, 4. Pause. 1, 2, 3, 4. Last time. Inhale. 1, 2, 3, 4. Pause. 1, 2, 3, 4. Start exhaling. 1, 2, 3, 4. Pause. 1, 2, 3, 4. Keep your eyes shut. Just be aware of your breathing. Fantastic. Slowly open your eyes. Clear? So can anybody out of student, can you tell me what exactly you experience whenever we are pausing? कोई बता पाएगा? Anybody? If you want to type in chat, if you want to say in front of everyone, you can chat or you can type a message also. Whatever, if you can feel anything, you had felt something. No? Nothing? आपने किया? Yes. रुचिका? Yes, रुचिका? आप कुछ बोलोगे तो इंटरैक्टिव सेशन होगा, नहीं तो मुझे बोलना बड़ा पसंद है, मैं तो बोलती ही रहती हूँ. दीप्ति, you were doing right? Yes, Yes. Did you feel anything whenever you were pausing? I felt Paused in- calmer every time. You felt calm? Very good. Did you feel how you inhale and how you exhale exactly? Yes, Exactly. So whenever हम तो ब्रीथ करते ही है बराबर, बचपन से मतलब जन्म से ही ब्रीथ कर रहे हैं, but whenever you are pausing at that time, actually you feel how you are inhaling and how you are exhaling, right? Whenever we pause at that time, we actually understand the importance of breathing. बराबर है ना? सपोज मैंने वो 1 2 3 4 तक, अगर 1 2 40 तक बोलती तो आप मुझे गाली देना शुरू कर देते, अरे भाई मैं कब सांस लूं, कब ये छोड़ू, बराबर. सो एट दैट टाइम वी एक्चुअली learn the importance what we have. You understand? So this is the yes, beauty or this is the power of pause. हमारे पास सब कुछ होता है, लेकिन हम इतने घाई में रहते हैं, इतने रश में रहते हैं कि हमारे पास जो है वो हम अप्रिशिएट करने के लिए भी हमारे पास टाइम नहीं रहता है. एंड वेन एवर वी आर पॉजिंग एट दैट टाइम, एक्चुअली वी अप्रिशिएट. लेकिन आजकल पॉज या रुकना कहीं पे होता ही नहीं है. बिकॉज दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ अवर मोबाइल, राइट? पहले के जमाने में ना लोग बहुत अच्छे से किसी का वेट भी कर लेते हैं. आपने तो बचपन से मोबाइल देखा है, हमारे बचपन में कोई मोबाइल वगैरह नहीं होता. हम लोग अगर फ्रेंड के लिए जाते थे, हाँ फ्रेंड घर पे नहीं थे, हम लोग शांत से बैठे रहते थे. कभी उसके मम्मी पापा से बात करते या किसी नेबर से बात करते, जब तक मेरी वो फ्रेंड नहीं आती. इसके साथ क्या होता था, वी गेट टू नो their parents also, we get to know people also. Nowadays what happens, whenever there is a waiting period, immediately people take out their phone and start searching on the phone. Actually what we watch inside this phone, nothing, right? We just open Facebook or WhatsApp or Insta. इसके अलावा कोई कुछ नहीं देखता है, right? And we actually miss whatever is going just around us. हमारे बाजू में कौन खड़ा है, हमारे बाजू में आके कौन काम कर रहा है, ये भी हमें कभी कभी पता नहीं रहता. So the power of pause is that it increases the awareness. And if you are connecting this pause with the breathing, then it is simple pranayam thing, right? So प्राणायाम के काफी टेक्निक रहते हैं, लेकिन ये ब्रीथ पॉज का जो टेक्निक रहता है ना, ये स्टूडेंट्स के लिए काफी काफी इफेक्टिव रहता है.
मेनी टाइम्स वी गेट हाइपर, जैसे अगर कोई पेपर आता है, क्वेश्चन पेपर आता है, कभी नहीं होता है, एक हाथ प्रोजेक्ट हमारे से सबमिट नहीं होता है, एंड देन वी गेट दैट स्ट्रेस, अंडर स्ट्रेस। उस वक्त कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा पॉज ले लीजिए, थोड़ा कंसंट्रेशन हमारे ब्रीदिंग की तरफ ले जाइए। इमीडिएटली यू विल अंडरस्टैंड दैट यू आर गेटिंग न्यू आइडियाज, दैट हाउ टू कंप्लीट दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और हाउ टू रिएक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, सो रिएक्शन नहीं चाहिए, हमें रिस्पॉन्स चाहिए, एंड दैट रिस्पॉन्स शुड बी वैलिड रिस्पॉन्स, राइट? रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्स होना चाहिए हमारे पास। ओके, एंड दिस रिस्पॉन्स विल गिव यू रियली बेटर फ्यूचर। Am I right? Are you getting my point? So recently this video was very viral and you all must be aware of that video. Okay, that who was that influencer? उसका कोई stand up comedy show था, am I right? और वहां पर कोई एक बंदा आया था जिसने बहुत ही इंसेन कमेंट की थी उसके गर्लफ्रेंड के बारे में, एंड देन देयर वाज अ डॉक्टर हु आल्सो टॉक्ड अबाउट द dissection or the dissected dead bodies. Have you heard this controversy? सबने सुनी होगी, आई होप। एक बार तो अपना अंगूठा निकाल दिखाइए इफ यू हैव हर्ड दिस। बहुत ज्यादा बवाल हो गया है। आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट, व्हाट, मोरे, मोरे था उसका नाम, राइट? प्रणीत मोरे या समथिंग लाइक दैट, एंड दैट yes, MBBS student, she was there, right? And I saw that clip. Okay, when that person, उस पे तो उसको शायद उसके जॉब से निकाला गया, घर पे बैठाया गया। So when at that time, whenever he was narrating that incident about her girlfriend, everybody was laughing, right? When that doctor actually narrated whatever she spoke about that dead bodies, which is actually the first teacher of we medical student, okay, everybody was laughing. I felt that वो जो इन्फ्लुएंसर था और वो डॉक्टर थी और वो जो भी कोई बोलने वाला था, उसी के साथ वो जो सारा जो ऑडियंस था ना, वो भी सेम कल्प्रिट था। अगर उन्होंने नहीं रिएक्ट किया होता, एक बार भी ये सुनने के बाद अगर वो पॉज करते, उनकी रिएक्शन अलग होती, बराबर? सो वी डोंट पॉज, वी डोंट थिंक अबाउट व्हाट इज गोइंग अराउंड, वी आर इन हरी टू गिव रिएक्शन। कि स्टैंड अप कॉमेडी है, वो कुछ भी बोल रहा है, वी हैव टू लाफ। अगर हमने हंसा तो हम लोगों पर लोग हंसेंगे। दैट इज द कंपल्शन। अगर मैंने ये फॉरवर्ड नहीं किया, लोग मुझे क्या कहेंगे? अगर ये व्हाट्सएप मैसेज आया, भले मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, भले मैं कोई लेक्चर ले रहा हूँ, बट दैट इज द अर्ज कि नहीं, मुझे यहाँ पर रिप्लाई करना ही है। अगर आप वहां पर अपने आप को रोक पाए ना, तो आप आगे जाके किसी भी एडिक्शन को, किसी भी जगह पर आप अपने आप को रोक पाओगे जो आपके लिए अच्छी नहीं है। बट ऑल दिस थिंग्स, नथिंग कम्स आउट ऑफ नोवेयर। इसके लिए एक हमें आदत होनी चाहिए होती है। जैसे हम बॉडी को आदत लगाते हैं, वैसे हम हमारे माइंड को भी आदत लगा सकते हैं। एंड दिस आदत इज टू पॉज। So pause before you speak, pause before you react, pause before you forward, pause before you hit like button on Insta, whatever, or social medias. Okay? So that doctor, she was also having that urge कि अगर मैं stand up comedy show पर आई हूँ, मेरे पास अगर माइक है, everybody is watching me, I have to say something. That was an urge. That was the pressure on her. And then she said something. What happened to her? अभी उसको कॉलेज से शायद 15 दिन की छुट्टी दे दी गई है, एंड नाउ हर रेप्यूटेशन इज कंप्लीटली बैड, एंड बिकॉज ऑफ हर द डॉक्टर्स रेप्यूटेशन हैज मलाइंड, राइट? ओके, वट एवर दैट, पहले वाला जो बंदा था उसकी नौकरी चली गई है, आगे जाके उस पर कौन सी लड़की विश्वास करेगी? मतलब लाइफ में भी वो सफर करने वाला है, एंड दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हरी, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर कि अगर मैं आया हूं तो मुझे कुछ ऐसे बोलना ही चाहिए, सो दैट देयर विल बी लाइक्स एंड फॉरवर्ड्स, right? So your life now, it is going to be really very easy, not easy, sorry, very difficult than us. हमारे जमाने में ये सोशल मीडिया नहीं था, कोई सोशल मीडिया पे दिखने का कोई प्रेशर नहीं था, बट यू गाइज हैव दैट प्रेशर, and that is why ability to develop this ability to pause is very very important. आपको समझना चाहिए कि कहाँ हमें रुकना है। यू आर गोइंग टू हैव दिस प्रेशर फ्रॉम योर फ्रेंड्स कि चलो एक तो चस्का ले ले, एक हाथ तो कश मार ले, क्या प्रॉब्लम होता है? एक से थोड़ी ना तो एडिक्शन तुझे लगने वाला है। नो, दैट फर्स्ट चस्का, दैट फर्स्ट कश इज गोइंग टू टेक यू टूवर्ड्स द एडिक्शन।
वहीं पर अगर आपने पॉज किया, थोड़ा सा सोचा कि सच्ची में ये जरूरी है मेरे लिए, यू आर गोइंग टू सेव यू। एम आई राइट? ओके, लोग जा रहे हैं उसके पीछे, फ्रेंड्स जा रहे हैं, अपने आप को हमेशा पूछ लीजिए जाना जरूरी है? पॉज ले लीजिए। ये पॉज ही आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिखाएगा, बहुत सारे मार्ग भी दिखाएगा, बहुत अच्छे से नए एवेन्यूज आपके सामने खड़ा कर देंगे। सो पॉज इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड ब्रीदिंग। ओके, सो टेक आउट सम टाइम फॉर योर योगा प्रैक्टिस। सो योगा का नाम दिया तो काफी हमें लगता है कि यार क्या बोरिंग है, क्योंकि हम एक जगह पर बैठते हैं, यहाँ पर क्या भागना है, जिम इज बेटर देन दिस। ओके, लेकिन जिम हमेशा आपको मूवमेंट देता है, मूवमेंट से हमेशा प्रोग्रेस नहीं होती है, प्रोग्रेस स्टिलनेस की वजह से भी आती है। ओके, सो अगर 12 घंटे की ड्यूटी करने के बाद रात को अगर आप 6 घंटा भी सोते हो ना, उसमें भी आपकी डेवलपमेंट हो जाती है। You must be knowing that there are continuously wear and tear going inside our body, right? आज ये मैं बात कर रही हूँ, आप सिंपल सुन रहे हैं तो भी आपके वहां पर आपके ब्रेन में कितने सारे सिनेप्सेस हो रहे हैं, मतलब कनेक्शन न्यूरॉन्स में हो रहे हैं और कनेक्शन टूट भी रहे हैं। ये जो टूटने का काम रहता है उसको वापस जोड़ने के लिए वहां पर रिपेयरिंग होना बहुत जरूरी होता है, और उसी के लिए पॉज जरूरी है। ये पॉज नेचुरली हमें रात के नींद से मिलता है, लेकिन आजकल अगर आप देखोगे तो लोग 2-2 3-3 बजे तक जागते रहते हैं। क्यों जागते हैं? बिकॉज ऑफ दिस मोबाइल और योर नेटफ्लिक्स और ऑल दिस सोशल मीडियाज और बिंज वॉचिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वी आर नॉट गिविंग टाइम फॉर अवर बॉडी टू पॉज। और इसी के साथ अलग अलग जो डिसऑर्डर्स आजकल हम देख रहे हैं, यंग एज में कार्डियोवैस्कुलर डिसीज होना, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस कंटिन्यूअसली हरी, continuously rush we are actually feeling. Your heart is anytime moving, right? Okay, whenever you are in this rush or during this rush or under this pressure, there is always the sympathetic nervous system activation and it is damaging your heart. आपका हार्ट हमेशा एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है। हार्ट का काम है वो वर्क करना, लेकिन आप आपको उसे कितना काम दे रहे हो? whenever you are exhaling for longer duration, whenever you are sitting at one place and focusing on your breath, that is the immediate relaxation for your heart, जो आपको किसी भी रील्स देखने से नहीं मिलने वाला है। आंखें बंद करके सिर्फ और सिर्फ ब्रीदिंग पर ध्यान भी आप लेकर जाते हो ना, दैट हाउ आई एम इनहेलिंग, हाउ आई एम एक्सेलिंग, इतना भी अवेयरनेस आप लेकर आते हो ना, देयर इज अ इमीडिएट रिलैक्सेशन टू योर हार्ट, बिलीव मी। वो रिलैक्सेशन आपको किसी और से नहीं मिलता है। आइदर यू आर गेटिंग, यू शुड गेट डीप स्लीप एंड देन दिस पर्पस ऑफ दिस माइंडफुलनेस, ये बहुत जरूरी रहता है। सो माइंडफुलनेस इज नथिंग बट द पॉज, इज नथिंग बट द प्राणायाम, इज नथिंग बट द ब्रीदिंग। Clear everyone? Okay, so that was about the beauty of pause and breathe. Let us talk about some common problems जो हम generally, मैं as a medico young generation में देखती हूँ। ओके, सो योगा फॉर हेल्दी एजिंग, जिसके बारे में हमने पहले बात की, बहुत बार हमें ऐसे लगता है कि ये जो स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह के जो आपने नाम बहुत सुने होंगे, है ना, स्पॉन्डिलाइटिस इज वेरी फेमस, काफी लोगों को होता है, और हमें लगता है कि ये तो सब बुढ़ापे के हैं डिसीजेस, हमें कहाँ होने वाला है, राइट? हमें ऐसे लगता है ना कि जो जॉइंट्स के प्रॉब्लम वगैरह है ये सब कुछ एजिंग प्रॉब्लम है, राइट? ये बहुत पहले 20 साल पहले ये एजिंग प्रॉब्लम कहे जाते थे, लेकिन आजकल ये प्रॉब्लम यूथ भी लेकर आते हैं हमारे पास। 15-16 साल की लड़कियों में, लड़कों में स्पॉन्डिलाइटिस डेवलप हो रहा है, and this is all because of your this mobile habit, because we are continuously talking about seeing this or watching this mobile. Am I right? Okay, अब ये मोबाइल जब हम देखते हैं तो हमारी पोजीशन ये ऐसी रहती है। एवरीबडी क्लियर? कोई भी मोबाइल ऐसे तो नहीं देखता है, नहीं देखता है ना, क्योंकि मोबाइल है ही ऐसी चीज कि उसे ऐसे ही देखना पड़ता है। Am I right? है ना? कौन देखता है ऐसे मोबाइल सामने रख के? मुझे बता दीजिए जरा। आप लैपटॉप वगैरह देख सकोगे, लेकिन मोबाइल जो मैक्सिमम हमारे एकदम सीने से लगा हुआ रहता है, लोग ऐसे पकड़ के सो जाते हैं मोबाइल को, बराबर हम वो वहां पर ऐसे देखते हैं। सो वेन एवर यू आर टेकिंग योर नेक लाइक दिस ना, वी आर एक्चुअली लूजिंग द नॉर्मल एंड द नेचुरल कर्वेचर ऑफ अवर नेक। ओके, सो our backbone is not like a bamboo shoot.
Everybody must have heard about it, right? It has this H-shaped curvature. और ये जो पहला हमारा जो सर्वाइकल रीजन, मतलब हमारे जो नेक का रीजन रहता है ना, वहां का जो स्पाइन है, वहां की जो मूवमेंट है या तो पोजीशन है, इट इज गोइंग लिटरली लिटिल इन naturally. Okay, so your spine on in this region is going in. Okay, this is called as scoliosis. This is natural scoliosis. Your spine in this cervical region, neck region should be like this. But because of mobile, it is becoming like this, C-shaped curvature. This is called as the loss of this curvature. अब इसके साथ क्या होता है, यू मस्ट बी नोइंग कि स्पाइन के हर एक जो वर्टिब्रल जो रहता है, वर्टिब्रल कॉलम का, वहां से एक एक पेयर आ जाती है जो हमारे ब्रेन से निकलती है, एंड ऑल दीज नर्व पेयर्स आर सपोर्टिंग एंटायर योर बॉडी. अगर हमारा सी शेप कर्वेचर दिन ब दिन बढ़ता गया, यू आर नॉट गिविंग एनी एक्सरसाइज और यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर नेक, तो धीरे धीरे से ये बढ़ने वाला है. धीरे से यहाँ पर आगे जाके आपके हाथ आपके काम नहीं कर पाएंगे, आपके बहुत ज्यादा शोल्डर्स दुखना शुरू हो जाएगा, एंड देन दिस इज काइंड ऑफ स्पॉन्डिलाइटिस, और फिर वो सर्वाइकल नेक लगाकर आपको घूमना पड़ेगा. बराबर, राइट? तो अब इसे अवॉइड करना है तो क्या करना है? ऑब्वियसली यू हैव टू रिड्यूस योर स्क्रीन टाइम. बराबर, जितना हो सके उतना मोबाइल को कहीं पे स्टैंड पे रख के अगर देखना ही है, जैसे लेक्चर्स आते हैं, आज भी आप ये सेशन मोबाइल पर ही शायद कनेक्ट किया होगा आपने. सो ट्राई टू कीप दैट मोबाइल सो दैट योर नेक विल बी लाइक दिस एंड द चिन पैरेलल टू द फ्लोर, नॉट लाइक दिस. ओके, ये सिंपल मूवमेंट के वजह से आपको पता है हमारे नेक पर, जनरली हमारी नेक है ना, ये हमारे हेड को बेयर करती है. बराबर, ये जो नेक ही है जो हेड को हमारे होल्ड कर रही है. एंड जनरल व्हेनेवर यू आर कीपिंग द नेक न्यूट्रल पोजीशन, मतलब ऐसे चिन पैरेलल एंड मेंटेनिंग दैट एस शेप कर्व, एट दैट टाइम योर हेड वेज लिटरली 4 to 5 kg. दैट इज द नॉर्मल वेट ऑफ योर हेड. ब्रेन का वेट है, ये सारे स्कल का वेट है, मल्टीपल ब्लड वेसल्स का वेट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, सो व्हेनेवर यू आर मेंटेनिंग दिस न्यूट्रल पोजीशन, योर हेड वेज 4 to 5 kg. But as you tilting your neck and making this angle 30 degree, okay, this weight increases up to 18 kg. 4 से 5 किलो का वेट कहा और 18 से 20 किलो का वेट कहा. और अगर इमेजिन कीजिए आप लेट कर देख रहे हैं और मोबाइल ऐसे देख रहे हो, कंप्लीटली डिस्टॉर्टेड नेक. बराबर, 45 to 60 डिग्री के साथ आपके हेड का वेट नेक पर आ रहा था, जो पहले 4 से 5 किलो था, अब वो 20 से 25 किलो का हो जाता है. दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द चेंजिंग दिस एंगल. नेक पहले ऐसे थी, अब वो ऐसे 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 हो रही है. ओके, and obviously this is going to cause you spondylitis, spondylosis, spondylolisthesis और न जाने क्या क्या. बराबर, स्लिप डिस्क, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में, लेमैन लैंग्वेज में स्लिप डिस्क कहते हैं. और फिर आगे जाके बहुत ही तकलीफ हो सकती है, बिकॉज नेक इज काइंड ऑफ अ थिंग जो आपको हेड को आपके शरीर से जोड़े रखता है. एंड हेड, इट इज नर्वस सिस्टम है, ब्रेन इज द किंग ऑफ ऑल ऑर्गन्स. अगर वो ही जो सिग्नल्स है वो नेक के द्वारा आपके शरीर को भेज रहा है, अगर वो नहीं भेज पाएगा तो आपका शरीर कैसे काम करेगा? सो नेक इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर बॉडी, और मोबाइल के कंटिन्यूअस यूज के वजह से वो ही सबसे ज्यादा हैम्पर हो रहा है. तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि जितना हो सके उतना मोबाइल स्क्रीन टाइम हमें कम करना है. अगर देखना भी है तो जितना हो सके उतना मोबाइल को सीधा रखिए. इफ यू आर वर्किंग ऑन लैपटॉप तो आपकी स्क्रीन ऐसी होनी चाहिए कि आपके आंखों के लाइन पर आपके स्क्रीन की फर्स्ट लाइन आनी चाहिए. इसके हिसाब से आप आपके वो अर्गोनॉमिक्स चेंज कर सकते हो. हाइट आप चेंज कर दीजिए, आपकी चेयर को थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए. एंड व्हेनेवर यू आर यूजिंग दिस माउस, ओके, ट्राई टू गिव रेस्ट टू योर एल्बो. सिर्फ ऐसे करना इज नॉट गुड फॉर योर एल्बो ऑल्सो, बिकॉज ये भी आगे जाके फिर वो जो टेनिस एल्बो वगैरह क्रिएट कर सकता है, शोल्डर पेन कर सकता है, फ्रोजन शोल्डर जैसे सिम्टम्स दिखा सकता है. सो ऑल दीज आर कॉज बिकॉज ऑफ योर फॉल्टी पोस्चर. जितना हो सके उतना बैकबोन को स्ट्रेट रख के बैठा कीजिए. वी ऑल हैव दिस हैबिट लाइक सिटिंग दिस. Okay, again, whatever that S-shaped curvature we are naturally having to our back, it is gone and it becomes C-shaped curvature. Again, we are going to be that Neanderthal man, Homo sapiens man, and what?
बराबर है ना, जो पहले के जमाने में बहुत सालों पहले जो लोग ऐसे, नॉट लोग, जो भी थे केव एज वाले जो लोग थे जो 4 पैरों पर चल रहे थे, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट पोजिशन अगेन, राइट. सो इवोल्यूशन नहीं है ये, हम वापस पीछे जा रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑल दिस मोबाइल प्रॉब्लम एंड नेक प्रॉब्लम, राइट. तो सिंपल एक छोटे से मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बता देती हूँ जिससे आप ये नेक के प्रॉब्लम्स है वो काफी हद तक, अप टू सर्टन एक्सटेंट यू कैन अवॉइड ऑल दिस स्पॉन्डिलाइटिस प्रॉब्लम. ओके. सो सिंपल, जिसे हम योग में ना ब्रह्म मुद्रा कहते हैं. जैसे लॉर्ड ब्रह्मा जिसके 4 सर होते हैं, हमें हमारा सर वो 4 डायरेक्शन में मूव करना है. Okay, everyone. So if your mobile, if you can again switch on your videos, it would be really very great for me so that I can understand that you are listening to me and following my instruction. If you are not comfortable, fine, no worries. Just look at me and try to follow me after one round. Okay. So we are calling this Brahma Mudra. It gives all 4 types of stretches to your neck. So the very slowly we are taking, actually हमें हमेशा straight बैठना होता है. योगा की first and basic requirement है कि take your backbone straight. Okay. So taking your backbone straight, thighs parallel to the floor and soles touching the floor or the earth. Right? Backbone straight, chin parallel to floor, not this, not this. Now start taking your neck or your face towards your right side. Slowly. मैक्सिमम पोजीशन में आपकी चिन और आपका शोल्डर ऑलमोस्ट सेम लाइन में आना चाहिए. ओके. whenever you are moving your neck towards right side, see to it that your shoulder is steady. Okay. You are not moving your shoulder. Keep your back completely straight, shoulder relaxed in same line, and then start turning your neck towards your right. Okay. Once you feel that this is my final position, no pain, nothing, and I can hold this position for few breaths, then close your eyes. And again pause. Breathe. Inhale completely. Exhale out. Inhale. Exhale. Take your own time to inhale and exhale. Maybe 3 to 4 breaths. One inhalation, one exhalation will be making one full breath. Slowly take your neck at the center again and start moving your neck towards your left side. Again, maximum stretch जितना आप दे सकते हो without moving your right shoulder. That is very important. Good. Again, close your eyes, pause, and focus on your breathing. 1. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Very good. Open your eyes again. Take your neck to the center. Slowly. Good. And start taking your neck back. हमें बैक बोन को जैसे पहले पोजीशन है वैसे ही करनी है. जितना हो सके उतना अपने हेड को रिलैक्स कर दीजिए पीछे की तरफ. कीप योर माउथ क्लोज. वेरी नाइस. नाउ अगेन क्लोज योर आईज एंड पॉज. ब्रीथ completely. Breathe out fully. Maybe for 1 or 2 breaths. Slowly open your eyes. Take your neck center and start taking your neck towards your chin. Again, do not relax your shoulder, okay? Shoulder should be straight. Take your chin completely close to your chest. If you can touch your chin to your chest, very good. So find your own final position and close your eyes. Breathe in, breathe out completely. After taking 3 to 4 breaths, slowly take your head at center and slowly open your eyes. This was the 1 round, right, left, back and then down. Okay, ये आपकी एक राउंड हो गई है. हमें ऐसे 3 राउंड्स करने होते हैं so that your neck will be completely relaxed. Okay, so this practice is really very, very beautiful practice and very helpful to avoid any spondylitis जैसे problem in future.
Okay, you are continuously going to watch this mobile, you are going to study a lot, you will write a lot, and at that time, obviously, your neck is going to be affected. So after every 2 to 3 hours, if you are doing these practices, they are really going to help you in future. Okay, so this is called simple Brahma Mudra. बहुत इफेक्टिव प्रैक्टिस है, कहीं पे भी आप कर सकते हो, ट्रेन में बैठे बैठे कर सकते हो, बाहर कहीं पे गए हो, किसी की राह देख रहे हो तब कर सकते हो. ओके, सिर्फ हमें एक ही करना है, करते वक्त हमें पॉज लेना है और ब्रीथ करना है. ओके, सो पॉज, ब्रीथ एंड थ्राइव. These three things are very important for your whatever you are in this stage in your life. ये बहुत जरूरी है. हम बोलेंगे कि यूथ में हम अभी नहीं भागेंगे तो कब भागेंगे, बराबर आपको ऐसे लगता है? बराबर है. आपके लिए भागना ज्यादा है, पॉज लेना छोटा हो सकता है, कम हो सकता है, लेकिन लेना जरूरी है. ओके, सो प्लीज फॉलो these instructions. And if you are comfortable, then please try to join any yoga class. आजकल बहुत अच्छे से ऑनलाइन क्लासेस भी मिलते हैं. योगा सिर्फ सीनियर होने के बाद, 40 के बाद करने की चीज नहीं है. योगा यूथफुल, मतलब जब आप यंग हो, स्कूल में हो, तब से करने की ये चीज है. सो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज योगा फॉर हेल्दी एजिंग. अगर आपको आपके 60s 70s 80s में भी परफेक्ट रहना है, आज जैसे हो वैसे ही चलना है, you don't want any braces for your neck, you don't want any lumbosacral belt in future, you don't want to go for any knee replacement surgery, then yoga is important. Okay, and necessary. Clear? Okay, so let us pause here. I won't say stop because this is really a short thing कि जहां पर हम रुकने वाले हैं. If you have any doubt, you can ask. धरती, राशि, हीत, आप बहुत अच्छे प्रैक्टिस कर रहे थे हमारे साथ. इफ यू हैव एनी डाउट, इफ यू वांट टू से समथिंग, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग, प्लीज गो अहेड. हर्ष, अंजलि, ओके, सो नो डाउट एट ऑल. डॉक्टर रानी, धरती, आर यू देयर? Yes, ma'am. So shall we commence here? Shall we pause here? Students, please ask questions. You can interact or else write your questions in the chat box if you want to ask something. ठीक है, चलो. I don't think there is a question. Yeah. Everything is understood well, or Yes. nothing is understood. Anjali, over to you, beta. Yes, ma'am. Good evening, everyone. I am Assistant Professor Anjali Moinani, a member of Department of Commerce from HR College of Commerce and Economics. As we come to end of this enriching session, it's my privilege to propose the vote of thanks. On behalf of HR College of Commerce and Economics, HSNC University, Mumbai, I extend our heartfelt gratitude to our esteemed speaker, Dr. Sharvari Abhyankar, for sharing her valuable insights on the topic Pause, Breathe, and Thrive. Ma'am, your wisdom, experience, and practical guidance have reminded us that true success is not only measured by academic achievements, but also by our ability to maintain balance, well-being, and inner peace. Your thoughtful perspective on stress management, Ayurveda, and holistic wellness have provided our students with valuable lessons. Somebody wants to say something. Anybody wants to say something? I think you can continue, dear. Okay. So, for valuable lessons that they can apply throughout their academic journey and beyond, I'm sure that today's session has inspired all of us to pause amidst our busy schedules, breathe with awareness, and thrive with purpose.
I would also like to express my sincere appreciation to our principal, Dr. Pooja Ramchandani, vice principals, Dr. Rani Tyagi and Dr. Jasveer Sodi, and also to the HSNC University administration for their continuous support in organizing meaningful learning opportunities for our students. A special thanks to all faculty members and staff for work behind the scenes to make this session possible. Also, thank you to all our first year students for their enthusiastic participation and engagement. We hope you carry forward the learnings from today's session and make them a part of your daily lives. With this, we conclude session 2 of FI induction series. Have a wonderful evening. Stay healthy, mindful, and positive. Thank you. Pause and breathe. Thank you so much, Thank you so much, students. Sharvari. Thank you so Thank you much, very Anjali. much. Yes. Thank you, Dharti. Thank you. Yes, ma'am. Thank you. Yes, we can end the meeting. Thank you.